Hello student, I am Surabh Asthana, your SST teacher again with you. Dear students, as you know, these days we are talking about the chapter number 1 of history subject. Okay? And dear students, you know the chapter name is Tracing Changes Through 1,000 Years Ago. Okay? Dear students, you know very well I had already shared few videos related to this chapter, and in that video we have seen how the changes comes in the physical appearance of a country, how the changes comes in our technologies, terminologies, etc. Now dear students, today we will see how the new states, the new empires, the new regions, kingdom emerges in medieval era. Okay? Dear students, जैसे कि आप जानते हैं आजकल हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? आजकल हम चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1,000 ईयर्स। मीन टू से इसमें हम देख रहे हैं कि 700 AD से लेकर 1750 AD के दौरान हमारे देश में क्या क्या चेंजेस आए, हमारे देश में क्या क्या परिवर्तन हुए, हमारे देश के भौगोलिक स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ, यहाँ के टर्मिनोलॉजीज में क्या परिवर्तन हुआ, यहाँ की टेक्नोलॉजीज में क्या परिवर्तन हुआ, हम इस दौरान हमारे देश में क्या क्या परिवर्तन हुए हम ये देख रहे हैं। एंड यू नो दिस वेरी वेल, दिस टाइम पीरियड मीन टू से द टाइम पीरियड ऑफ 700 AD to 1750 AD, this time period is known as the time period of medieval era. Okay, this time period is known as medieval era. Mean to say in this year we will learn about the medieval history, because in the last year mean to say in the class 6 you have learned about ancient history, and in this year you will learn about medieval history. Okay, so dear students, let's continue. Region and empire. Region and empire. In this section we will try to find which states or empires emerges in this period. Okay, इस सेक्शन में हम क्या देखेंगे कि इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि 700 से लेके 1750 AD के बीच में, 700 से लेके 1750 AD के बीच में कौन कौन से नए स्टेट्स या कौन कौन से नए साम्राज्य हमारे देश में उदित हुए। ओके, सो ओपन योर बुक and let's start with me. Last states like those of the Cholas, Tughlaqs or Mughals encompassed many regions. Mean to say in this time period the big dynasties like Cholas, Tughlaqs or Mughals emerged. Okay, mean to say क्या है, इस टाइम पीरियड में बहुत बड़ी डायनेस्टीज, बहुत बड़ी बड़ी एम्पायर्स का भी उदय होता है, जैसे कि चोलास, मुगल्स और तुगलक्स। ओके, मुगल द टाइम पीरियड ऑफ मुगल एरा, मुगल एम्पायर इज फ्रॉम 1526 to 1857। ओके, मुगल का साम्राज्य कब से होता है? मुगल साम्राज्य स्टार्ट होता है हमारे देश में 1526 से और पूरा चलता है ये 1857 की क्रांति तक। ओके, 1857 की क्रांति में मुगल साम्राज्य का अंतिम राजा बहादुर शाह जफर जब अरेस्ट होता है, आफ्टर दैट क्या होता है, मुगल साम्राज्य का अंत होता है और हमारे यहाँ ब्रिटिश रूलिंग स्टार्ट हो जाती है। सो द टाइम पीरियड ऑफ मुगल एरा इज टू from 1526 to 1857, and this empire, the founder of this empire is बाबर। और मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में कौन करता है? मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में बाबर करता है, जो कि एक फरगना या कि मध्य एशिया का निवासी था। बाबर उसको क्या करता है, वो मुगल साम्राज्य की स्थापना हमारे देश में करता है। एंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस एम्पायर इज 1526 to 1857, and this empire starts with the first war of Panipat, which was held on 21st April 1526। ये एम्पायर स्टार्ट होता है पानीपत के प्रथम युद्ध से, और ये पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को होता है। ओके, एंड नेक्स्ट
वंश था तुगलक जिन्होंने शासन किया था। एंड चोलास, दिस इज द एम्पायर ऑफ साउथ इंडिया इन दैट एरा। ओके, और चोलास का रीजन क्या था, एम्पायर कहाँ पे था, दक्षिण भारत पे था उस समय पे। सो these big dynasties emergence in medieval era like Cholas, Tughlaqs and Mughals. A Sanskrit Prashasti praising the Delhi Sultan Ghiyasuddin Balban, and the time period of Balban is 1266 to 1287. Okay, explain that he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal in the east to the Ghazni in Afghanistan in the west and included all of South India. Okay. Prashasti, this is a type of letter in the praising of someone. Okay. ये क्या है, प्रशस्ति क्या है, एक ऐसा पत्र है जिसमें किसी की भी प्रशंसा की जाती है। ओके, प्रशस्ति पत्र, जैसे कि आप कहीं भी देखते होंगे, अगर हिंदी में लिखा होता होगा कि उनको इस विषय में प्रशस्ति पत्र दिया गया। प्रशस्ति mean to say the letter, the document which was wrote in the praising of someone in the ancient era। मतलब वो लेटर, वो डॉक्यूमेंट जो कि किसी की प्रशंसा के लिए लिखे जाते थे। सो असंस्कृत प्रशस्ति, एक संस्कृत प्रशस्ति थी प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान, जिसमें दिल्ली सल्तनत का एक राजा था गियासुद्दीन बलबन, उसकी प्रशंसा की गई है। एट द टाइम पीरियड ऑफ द रूलिंग ऑफ गियासुद्दीन बलबन इज 1266 to 1287। गियासुद्दीन बलबन कौन था, गुलाम वंश का एक राजा था, और दिल्ली सल्तनत का एक वंश था गुलाम वंश, उसका एक राजा था गियासुद्दीन बलबन, और इसने भारत में शासन किया था 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक। सो इसकी प्रशंसा में एक प्रशस्ति पत्र लिखा गया है, एक प्रशस्ति मिली है। एक्सप्लेन दैट ही वाज द रूलर ऑफ अ वास्ट एम्पायर, जिसमें ये बताया गया है कि इसका एम्पायर जो था, गियासुद्दीन बलबन का एम्पायर जो था, बहुत बड़ा एम्पायर था। मतलब गियासुद्दीन बलबन ने बहुत बड़े साम्राज्य पर राज किया था, और इसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था, इसका साम्राज्य जो है पूर्व में बंगाल में गोंडा से लेकर पश्चिम में गजनी अफगानिस्तान, दक्षिण भारत में भी था। ओके, तो वो जो प्रशस्ति पत्र मिली है जो कि संस्कृत में लिखी हुई है, उसमें ये बताया गया है गियासुद्दीन बलबन ने एक बहुत बड़े साम्राज्य पर राज किया था। एंड द रीजन ऑफ दैट एम्पायर्स इज Bengal to अफगानिस्तान एंड इन साउथ इंडिया। ओके, और इसका साम्राज्य विस्तार कहाँ से था, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण तक में इसकी साम्राज्य का विस्तार था, जैसा कि हमें उस प्रशस्ति से पता चलता है। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, गौड़ा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात apparently fled before his armies। मतलब ये इतना शक्तिशाली राजा था कि इसके आर्मीज के सामने गौड़ा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात के जितने भी लोग थे, जितने भी किंगडम्स थे, वो पीछे हट गए, भाग गए जब युद्ध हुआ, और इस तरह से इसके साम्राज्य का विस्तार इतना बड़ा हो गया। रिगार्ड these as exaggerated claims of consequence। और लेकिन क्या हुआ, जब बाद में हिस्टोरियंस ने ये देखा, स्टडी की, तो उन्हें पता चला कि उसके विजय अभियानों को बढ़ा चढ़ाकर उस प्रशस्ति में बताया गया एक्चुअल में इतना बड़ा साम्राज्य बलबन का नहीं था। एक्सैगरेटेड का मतलब क्या होता है, एक्सैगरेटेड, द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज बढ़ा चढ़ाकर बताना, एंड द मीनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस मीन टू सी विजय अभियान। तो जब हिस्टोरियंस ने स्टडी की, तो उन्हें पता चला कि वास्तव में बलबन का साम्राज्य इतना बड़ा नहीं था, बल्कि उसे प्रशस्ति में बढ़ा चढ़ाकर बता दिया गया। At the same time, they try to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of the subcontinent। और जब ये समझने का प्रयास किया गया कि ये झूठ क्यों बोला गया, तो शायद इसलिए झूठ बोला गया कि वो सब कॉन्टिनेंट के जितने भी रीजन्स हैं उन्हें कंट्रोल कर सके, और आने वाली पीढ़ी को हो सकता है इस सच्चाई के बारे में न पता चले और लोग एक भ्रम में रहे कि गियासुद्दीन बलबन का साम्राज्य इतना बड़ा था। ओके, नेक्स्ट, लैंग्वेज एंड रीजन।
and reason. Okay, so in 1318, the poet Amir Khusro noted that there was Amir Khusro. This is a poet of Delhi Sultanate. He worked at the period of Delhi Sultanate. So Amir Khusro observed that there was different languages in different regions. Okay, so Amir Khusro जो कि दिल्ली सल्तनत के कवि थे, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इंडिया में डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड. ओके, सो यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, लाइक सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री इन साउदर्न कर्नाटका, तेलंगानी इन आंध्र प्रदेश, गुजरी इन गुजरात, माबारी इन तमिलनाडु, गौरी इन बंगाल, अवधी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड हिंदवी इन द एरिया ऑफ दिल्ली. Mean to say, Amir Khusro observed that there was a different languages spoken by the people in the different regions. Okay, आमिर खुसरो ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि सिंधी बोली जाती है, लाहौरी बोली जाती है, कश्मीरी बोली जाती है, द्वार समुद्री बोली जाती है. द्वार समुद्री इन द साउदर्न कर्नाटका, मीन टू से कर्नाटका के दक्षिण भाग में द्वार समुद्री बोली जाती है. तेलंगानी आंध्रा में बोली जा रही है, गुजरी गुजरात में, मावारी तमिलनाडु में, गौरी बंगाल में बोली जाती है, अवधी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश मतलब पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जा रही है, अवधी बोली जा रही है, और हिंदवी बोली जा रही है दिल्ली के अराउंड में. सो आमिर खुसरो went on to explain that in contrast to these languages there was Sanskrit which did not belong to any region. और इन सबों में इन्होंने कंट्रास्ट ये भी पाया, एक कंट्रास्ट ये भी ऑब्जर्व किया आमिर खुसरो ने कि द संस्कृत डजंट बिलोंग टू एनी रीजन. संस्कृत किसी क्षेत्र से बिलोंग नहीं करती. उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि संस्कृत भाषा जो है वो किसी क्षेत्र से संबंधित नहीं है. इट वॉज एन ओल्ड लैंग्वेज, एक प्राचीन भाषा है, एंड कॉमन पीपल डू नॉट नो इट. और जो है सामान्य मनुष्य जो है, ऑर्डिनरी पीपल्स ऑफ दैट एरा डजंट हैव द नॉलेज ऑफ संस्कृत. और जो सामान्य लोग हैं उन्हें संस्कृत का कोई ज्ञान नहीं है. ओनली द ब्राह्मण्स डू. केवल ये भाषा सुनता समझता और बोलता कौन है, ओनली बाय द ब्राह्मण्स. ओके, डिड यू नोटिस दैट द नेम्स बाय विच लैंग्वेजेस आर नोन हैव चेंज्ड ओवर द टाइम. सो have you noticed over the time period the names of these languages have been changed. आपको क्या है, आपने कभी नोटिस किया है कि जो लैंग्वेजेस हैं उनका नाम जो है टाइम के साथ साथ बदल गया है. जैसे क्या दिया है, गौरी भाषा कहाँ बोली जाती थी उस टाइम पीरियड में, बंगाल में बोली जाती थी, और आज भी वही भाषा बंगाल में बोली जा रही है. भाषा नहीं परिवर्तित हुई है, बस उसका नाम बदल गया है. अब गौरी की जगह क्या होता है, बंगाली भाषा का यूज होता है, बंगाली शब्द का यूज होता है. भाषा सेम है स्टूडेंट, बस उनका नाम बदल गया है ओवर द टाइम पीरियड. ओके, तो गौरी को हम कौन सी भाषा कहते हैं, बंगाली कहते हैं. मावारी को जैसे हम कौन सी भाषा कहते हैं, तमिल भाषा कहते हैं. ओके, तो ओवर द टाइम पीरियड द नेम ऑफ दीज लैंग्वेजेस हैव बीन चेंज्ड. और समय के साथ साथ इन भाषाओं का नाम क्या है, भाषाओं का नाम परिवर्तित हो गया. भाषाएं वही है, बस उनका नाम बदल गया है. ओके, नेक्स्ट. By 700 many regions already possess a distinct geographical dimension and their own languages and cultural characteristics. Okay, so 700 AD के टाइम पीरियड में क्या हुआ, रीजनल स्टेट्स डेवलप हुए. रीजनल मतलब छोटे छोटे किंगडम्स एमर्जेंस हुए, और these regional states have their own languages, own culture and own characteristics. और ये जो छोटे छोटे स्टेट्स डेवलप हुए इस टाइम पीरियड में, उनका क्या थी, उनकी अपनी भाषा थी, उनका अपना कल्चर था, उनकी अपनी विशेषताएं थी. और ये स्टेट्स कब डेवलप होते हैं, 700 AD के नियर अबाउट. ओके,
You will learn more about these in chapter 9. They were also associated with specific ruling dynasties. Okay, and these regions have their own ruling dynasties. और ये जो रीजनल स्टेट्स थे उनकी अपनी रूलिंग डायनेस्टीज थी. वहाँ पे लोगों का किसी न किसी राजा का राज्य था. These was considerable conflict between these states. और क्या होता था, ये जो छोटे छोटे रीजनल स्टेट्स थे इनमें क्या हुआ, इनमें कन्फ्लिक्ट्स भी होते रहते थे. Occasionally dynasties like Chulas, Khiljis, Tughlaq and Mughals were able to build an empire that was pan-regional, spanning diverse regions. Okay? तो 700 AD के नियर अबाउट क्या होता है, छोटे छोटे रीजनल स्टेट्स डेवलप होते हैं and these states have their own language, characteristics and cultures. But over the time period, Cholas, Tughlaqs, Mughals, these dynasties developed a pan-regional empire. मतलब ये जो मिडिल एरा में कुछ बड़ी डायनेस्टीज भी आई, बड़े एम्पायर्स भी आए लाइक चोलास, मुगल्स, तुगलक्स. इन्होंने क्या किया, इन छोटे छोटे रीजनल स्टेट्स को अपने में मिला लिया, उन्हें जीत लिया, युद्ध किया, जीत लिया और क्या हुआ, एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की. सो ओवर द टाइम पीरियड क्या होता है, ये जो रीजनल स्टेट्स होते हैं ये बड़ी डायनेस्टीज में मिल जाते हैं. ओके, क्योंकि वो उनसे हार जाते हैं और ये राजा जो होते थे इन्हें अपने राज्य में मिला लेते थे और क्या होता, इस तरह से उन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी. Not all these empires were equally stable or successful. लेकिन ऐसा नहीं था कि ये लोग जो स्टेट्स डेवलप हुए, जो पैन रीजनल एम्पायर्स डेवलप हुए, वो हमेशा चलते ही रहे. लोग आए, लोग चले भी गए. ऐसा नहीं है कि आज हम राजा बन गए तो 1000 साल तक राजा ही बने रहेंगे. लोगों की शक्ति छीड़ भी हुई एक टाइम पीरियड पे और क्या हुआ, उनकी डायनेस्टी खत्म हो गई, एक नई डायनेस्टी, एक नई रूलिंग डायनेस्टी एमर्ज हुई. ओके, तो नॉट ऑल दीज एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल. और ये जो एम्पायर्स थे वो इक्वली सक्सेसफुल और स्टेबल नहीं थे. ओके, व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड इन द 18th century. ओके, तो जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लगा, ओके, व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड इन द 18th century मीन टू से आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड. ओके, औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक मुगल साम्राज्य था जो आखिरी शक्तिशाली मुगल साम्राज्य की अगर बात की जाए, कभी आपसे कोई पूछे कि आखिरी शक्तिशाली मुगल साम्राज्य मुगल शासक कौन सा था, तो आखिरी शक्तिशाली मुगल शासक तो जो था औरंगजेब था. और इसकी मृत्यु कब होती है, इसकी मृत्यु हो जाती है 1760 में. सो आफ्टर द डेथ ऑफ दिस किंग, दिस रूलर, व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइन, और इसकी मृत्यु के बाद जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लगता है, उसका पतन होना शुरू होता है 18वीं शताब्दी में, इट लेड टू द रीइमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स. तो क्या होता है, the regional state re-emerges, okay, when the Mughal Empire declined after the death of Aurangzeb in the 18th century. The regional state re-emerges in this period. तो क्या होता है, 1760 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जो कि आखिरी शक्तिशाली शासक होता है मुगल साम्राज्य का. वैसे तो मुगल साम्राज्य कब तक चलता है स्टूडेंट, मुगल साम्राज्य 1857 तक चलता है. और इसका आखिरी शासक कौन था, इसका आखिरी शासक था बहादुर शाह जफर, जिसे 1857 की क्रांति जो विच वॉज द फर्स्ट इंडियन फ्रीडम रिवॉल्यूशन. ओके, 1857 में जो फ्रीडम रिवॉल्यूशन होता है इंडिया में, उसमें क्या कहते हैं, उसमें ब्रिटिश लोग बहादुर शाह जफर को अरेस्ट करके कहाँ भेज देते हैं, म्यांमार भेज देते हैं. ओके, एंड द ओल्ड नेम ऑफ म्यांमार इज यांगून, तो उसे यांगून में भेज देते हैं और वहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है. तो चलता तो ये है 1857 तक मुगल साम्राज्य, लेकिन क्या होता है 1760 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही इसका पतन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि औरंगजेब के बाद के जो भी शासक आए वो इतने कुशल नहीं थे. दे वर नॉट द स्किल्ड रूलर. सो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, मुगल एम्पायर started decline. So
जब मुगल एम्पायर औरंगजेब की मृत्यु के बाद पतन की ओर अग्रसर होता है, उसी समय क्या होता है, जो रीजनल स्टेट्स को इन राजाओं ने जीत के अपने एम्पायर में मिलाकर एक बड़े पैन रीजनल एम्पायर को डेवलप किया था, वो रीजनल स्टेट्स क्या होते हैं, वो रीजनल स्टेट्स स्वतंत्र होना शुरू हो जाते हैं और इनका फिर से इमर्जेंस होता है। बट ईयर्स ऑफ इंपीरियल पैन रीजनल रूल had altered the character of the regions. Okay, so ये रीजन्स जो थे, रीजनल स्टेट्स जो थे, वो डेवलप होना, वो इमर्जेंस होना शुरू हो जाते हैं, वो क्या होता है, वो स्वतंत्र होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत टाइम तक क्या था, वो पैन रीजनल में ही थे। जो बहुत बड़ा साम्राज्य डायनेस्टीज का था, उसी में उनका विलय हुआ था। सो जो कैरेक्टर्स थे वो स्वतंत्र तो भले हो गए, लेकिन उस डायनेस्टी का जो कैरेक्टर, जो विशेषता इनके अंदर आ गई इस रीजन्स में, उसे इन्होंने नहीं छोड़ा। ओके, अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट द रीजन्स वर लेफ्ट विद द लेगेसीज ऑफ द बिग एंड स्मॉल स्टेट दैट हैड रूलर ओवर देम। मतलब वो स्वतंत्र तो हुए, लेकिन इन बिग डायनेस्टीज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो उनके अंदर बनी रही, वो उन्हें छोड़ नहीं पाया, क्योंकि वो एक बहुत बड़े टाइम पीरियड में क्या थे, वो शासित थे, किसी के प्रभाव में थे। इसीलिए इतने समय तक किसी के प्रभाव में रहने के उपरांत भी, स्वतंत्र होने के पश्चात भी, ये उनके कैरेक्टर को छोड़ नहीं पाए। ओके, दिस वॉज apparent in the emergence of many distinct and shared traditions in the realms of governance, the management of the economy, elite culture and languages. Okay, so there was an impact of pan-regional dynasties on these regional states. Okay, क्या होता है, इन डायनेस्टीज जो थी, पैन रीजनल जो डायनेस्टीज थी, उनका इमर्जेंस इनके ऊपर, इन रीजनल स्टेट्स के ऊपर बना रहा, जस्ट लाइक in the field of governance. Okay, in the field of governance, the management of economy. Okay, in the field of governance, in the management of economy, elite cultures and language. Okay, और इन सारे क्षेत्रों में क्या था, एम्पायर्स का प्रभाव जो था रीजनल स्टेट्स पे बना हुआ था। Through the 1000 years between 700 and 1750, the characters of the different regions did not grow in isolation. Okay, because these regional states which emerges after the death of Aurangzeb, these regional states were not grew in isolation. So these states have the characteristics of these pan-regional empires. Okay, मतलब कहने का क्या है स्टूडेंट, ये जो स्टेट्स जो रीइमर्जेंस हो रहे हैं औरंगजेब की डेथ के बाद, ये क्या थे, ये आइसोलेशन में ग्रू नहीं हुए थे, ये आइसोलेशन में डेवलप नहीं हुए थे, ये इन राजाओं के प्रभाव में ही डेवलप हुए थे, इन डायनेस्टीज के प्रभाव में ही डेवलप हुए थे। इसीलिए इनके ऊपर, इन डायनेस्टीज का क्या था, इन डायनेस्टीज का प्रभाव इनके रीइमर्जेंस के बाद भी इनके ऊपर बना हुआ था। ओके, these regions felt the impact of large pan-regional forces of integration without ever quite losing their distinctiveness. Okay, so ये emergence तो हो जाते हैं ये regional states, लेकिन इन पे इनका प्रभाव बना हुआ होता है, तो ये अपनी विशिष्टता को बनाए रखते हुए, ये अपनी एकता, अपनी विशिष्टता को बनाए रखते हुए उनके भी प्रभाव से प्रभावित थे। ओके, so dear students, the section of region and empire of this chapter have completed, and in this section we have seen how the new regions and empires emerges in the period of 780 to 1750 AD. Okay, now dear students, the explanation of this segment have completed. Now it's time to your homework, and your homework is to make a list of the languages
mentioned by Amir Khusro. Okay, your homework is to make a list of the languages mentioned by Amir Khusro. You have to make a list of the languages which was observed by the Amir Khusro. So dear students, now today's class is over. See you in the next video. In that video, we will continue this chapter with different segment. Okay, so dear students, till then, bye. Have a nice day.